Hello everyone, welcome to another class of mathematics, and today we will be starting with our new chapter, that is multiplication, and we have already completed our last chapter, which was subtraction, addition and all those things. Okay, so here in chapter 3 we will be studying multiplication. Now here we will only not study multiplication of simple numbers but larger numbers, and we will be studying multiplication of multiple numbers as well. So here you see exercise 3a, question number 1, it is written. Question number 1, let us take up sub number A. 23 into 12 is equal to 12 into how much? Now, this is based on you can say there is a formula based thing where it is said that if A into B is equal to C, मतलब A और B को मल्टीप्लाई करने से अगर C मिलेगा, तो अगर A और B का प्लेस इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब B इंटू A अगर लिखेंगे तब भी हमको C ही मिलेगा. ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या पता चल जाता है कि जो भी दो नंबर्स को या फिर तीन नंबर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर उनका प्लेस चेंज कर दिया जाए, B की जगह A की जगह B, या फिर फर्स्ट नंबर की जगह सेकंड नंबर की जगह फर्स्ट नंबर बिठा दे, तब भी आंसर हमको सेम ही मिलेगा. ओके, so suppose we have three numbers A into B into C is equal to D. ठीक है, अगर ये आता है तो this is just an example. okay, so A into B into C करके अगर हम लोग को D मिलता है, तो अगर C into A into B ऐसे करके अगर लिखेंगे तब भी आंसर D ही होगा हमारा. ठीक है, तो हम लोग को इससे क्या पता चलता है कि अगर हम लोग प्लेस ऑफ द नंबर्स चेंज कर दे तो उससे मल्टीप्लिकेशन का आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है. वी विल गेट द सेम आंसर ओनली. ओके, सो हियर इट इज गिवन 23 into 12 is equal to 12 into how much? So it will be what? 23. तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे करके लिखे या फिर ऐसे करके लिखे, अल्टीमेटली बोथ विल बी इक्वल ओनली. Okay, so this is how we this is the answer of question number 1A. Now let us go to question number 1B. B, it is written 7 into 0. 7 into 0. Now this is based on the property 17, right? 17 into 0 is equal to how much? Okay. Now you see, we know that any number multiplied by 0, we will always get 0 as an answer. तो इसका क्या है? 0 ही आंसर होगा. इसकी जगह पे कोई भी नंबर बिठा लो, 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, how much, however number, whatever number you want to set here, you can put, you will be getting 0 only. Okay, so it does not matter. Number C, it is written 35 into 1. 35 into 1 is equal to how much? Now you see, like 0 into any number will always be 0. मतलब ऐसा ही एक प्रॉपर्टी है जो ये कहता है कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हम लोग को वही नंबर मिलेगा. तो 35 into 1 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? फिर से 35 ही मिलेगा. इसके जगह पे अगर 7 into 1 करते हैं तो क्या मिलता है? 7. 8 into 1 करते हैं तो क्या मिलता है? 8. ठीक है, 1 into 1 करते हैं तो क्या मिलता है? 1. So any number multiplied by 1, we will always get that number only. Okay, next we have number D. Number D, it is written 15 into 6 into 25 equals to 15 into 25 into dash. Okay, so you see here it is written 15 into 6 into 25 is equal to 15 into 25 into dash. Okay, अगेन ये जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि तीन नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा, अगर उसका प्लेस चेंज कर देंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा. तो यहाँ पे क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर है तो ये ब्रैकेट अगर हम लोग लिखे तब भी ठीक है, ब्रैकेट अगर नहीं लिखे तब भी ठीक है. ब्रैकेट का ज्यादा जरूरत तब होता है जब हम लोग को नेगेटिव नंबर मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे 15 into 6 into 25 लिखे या फिर 15 into 25 into कौन सा वाला मिसिंग है? 6. तो यहाँ पे
6 लिखेंगे, तब भी both will be equal only. Okay, then number E. Let us go to number E. 28 into dash is equal to 28. So 28 into dash is equal to 28. अभी ये कौन से प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? ये वाले प्रॉपर्टी पे. मतलब किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करने से हम लोग को सेम ही नंबर मिलेगा. सेम जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया वही आंसर कैसे मिलेगा? अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो. ठीक है ना? सो 1 विल बी आवर आंसर हियर. नेक्स्ट नंबर F we have 42 into dash is equal to 0. 42 into dash is equal to 0. अभी ये फिर से इस प्रॉपर्टी पे आ गया. किसी भी नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हम लोग को 0 मिलेगा? 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 0 मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट सॉल्व कर ही लिया तो सारे सॉल्व कर देते हैं, है ना? नंबर जी. Number G, what do we have? 5 into 11 into dash. 5 into 11 into dash is equal to 0. 5 into 11 जो भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, कितने भी नंबर चाहे आ जाए, अगर आंसर 0 आना है तो मल्टीप्लाई क्या से करना है? हमेशा 0 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो ऑलवेज विथ 0. H. Number H we have 13 into 9 into dash. 13 into 9 into dash is equal to 5 into dash into 13. 5 into dash into 13. अभी देखो दोनों साइड में एक एक नंबर मिसिंग है ना? अपना इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड, ये जो इक्वल टू का लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू का ये साइड जो होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड. ओके, नाउ इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड में अपना क्या मिसिंग है? यहाँ पे देखो 13 इंटू 9 इंटू क्या होगा हम लोगों को पता नहीं है ना? 5 इंटू डैश इंटू 13. अभी दोनों ही जगह में 13 तो कॉमन है ना? और दोनों ही साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल भी बनाना है. तो इक्वल कैसे बनेगा? इक्वल तभी बनेगा जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, तभी होगा. चाहे उसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है. ओके, ऑर्डर ऑफ नंबर्स आगे पीछे करके लिख सकते हैं, वो हम लोग को पता है, कहीं पे भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं, बट सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके सेम आंसर हम लोग को मिलने वाला है. तो यहाँ पे 13 इंटू 9 इंटू इस साइड में हम लोग देख रहे हैं कि 5 है, तो यहाँ पे 5 बिठा देंगे. ओके, तो 13 इंटू 9 इंटू 5 हो गया. और यहाँ पे 5 और 13 ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या है? 9 है जो यहाँ पे नहीं है, तो 9 बिठा देंगे. ठीक है, तो हम लोग को बोथ द साइड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या बोलते हैं? इक्वल मिल जाएगा. ओके, so this is how we need to solve. I hope all of you have written the solutions. While you can write the solutions in your book also, you don't need to copy it down. Okay, next we do question number 2. Yes, so all of you please pause the video and write down all the answers first, then you move to question number 2. Okay, so question number 2, you see what is written. Without actual multiplication, write E for even product and O for odd product. Okay, हम लोग को क्या बोला हुआ है? E लिखने के लिए बोला, O लिखने के लिए बोला है. E किस चीज के लिए लिखने के लिए बोला है? इवन प्रोडक्ट्स के लिए. ठीक है, लेट मी रब इट ऑफ फर्स्ट. We are told to write E for even products and O for odd products. अभी कोई भी नंबर इवन है कि ऑड है वो हम लोग को कैसे पता चलता है? E for even and O for odd. ओके, कोई भी नंबर हम लोग को इवन है या ऑड है वो कैसे पता चलता है? लास्ट डिजिट देख करके नंबर का, है ना? जो वंस डिजिट होता है नंबर का वो देख के हम लोग को पता चलता है कि वो नंबर ऑड है कि इवन है. ठीक है, अभी कोई भी नंबर सपोज मैंने लिखा 2 3 4 1,
तो इसमें ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है कैसे पता चलेगा? ये वंस डिजिट देख करके, है ना। वंस डिजिट में क्या है? 1. दैट मीन्स दिस इज अ ऑड नंबर. ओके, नाउ इफ आई राइट 5 6 3 6, तो ये नंबर क्या है? ऑड है या इवन है? ये इवन नंबर है. कैसे पता चलता है? लास्ट डिजिट देख करके. तो लास्ट डिजिट 6 है, तो ये क्या है? इवन नंबर है. ठीक है, तो ऐसे करके ही हम लोग को मल्टीप्लिकेशन पूरा करके यहाँ पे नहीं दिखाना है, खाली लास्ट डिजिट हम लोग को आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई करके ये लिखना है कि ये ऑड नंबर मिलेगा हम लोग को या इवन नंबर मिलेगा. ठीक है, वेरी सिंपल. नाउ all the numbers that we will be getting, we will just do the multiplications in rough or in our mind and we will write down the answers. Okay, now you see it is written without actual multiplication, write E for even product and O for odd product. Okay, now you see here it is given number A, 25 into 25 into it is given 13. अभी 13 का टेबल किस किस को आता है मुझे पता नहीं है. सब लोग अगर 13 का टेबल आता है तो अच्छी बात है, जल्दी आ जाएगा. अगर नहीं आता है तो भी कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, बट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू स्टडी इफ पॉसिबल. ओके, इफ नॉट देन ऑल्सो इट्स फाइन. नाउ अभी हम लोग को मल्टीप्लिकेशन तो करना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये पहला जो नंबर है इसका वंस डिजिट और दूसरा जो नंबर है इसका वंस डिजिट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 5 इंटू 3, 5 3 जा कितना है? 15. ये माइंड में ही हो सकता है अपने. तो 5 3 जा कितना है? 15. 15 का लास्ट डिजिट क्या है? 5 है. दैट मीन्स ये अपना क्या है? ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? इट इज आवर ऑड नंबर. सो दैट मीन्स द आंसर हियर विल बी O. ओके, सो नंबर 2A का जो सर्कल है वहां पे लिख दो O. Okay, so I hope you have understood this. Now let's do number B. Okay, so number B, you see we have 33 into 14. Okay, 4 into 3. Just a second please. So 3 into 4 we will be doing here. वंस डिजिट, पहले नंबर का वंस डिजिट पे क्या है? 3. दूसरे नंबर का वंस डिजिट पे क्या है? 4. सो 4 into 3 we will be getting here 4 3s are 12, right? So 12 का लास्ट डिजिट क्या है? 2. That means this will be again our even number. तो यहाँ पे जो सर्कल है वहाँ पे क्या लिखोगे? E. Okay, for number B. Now number C. Number C we have 626 into 41. तो हम लोग को यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है? 6 into 1. ओके, पहले नंबर का लास्ट डिजिट और दूसरे नंबर का लास्ट डिजिट. तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6 into 1. देन वी विल गेट हाउ मच? 6, which is an even number. So this will be our even number. So even product. So E you will write down. Okay. Then we have 42 into 34. Okay, number D we have 42 into 34. तो हम लोग को क्या मल्टीप्लाई करना है? 4 into 2, राइट? और 2 into 4, तो 2 into 4 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 8. सो 8 इज एन इवन नंबर. सो हियर इन सर्कल यू विल पुट E. ओके, देन नंबर E 7 6 जा, अच्छा, नंबर E F G H. All these 4 numbers you do at home, okay, by yourself. This is very easy, so I am not taking up this numbers. Just a second once. So we are done with this exercise. It was very easy exercise. Let's start with exercise number B. Okay, so I hope you already know how to do multiplication. So easy multiplication हम लोग थोड़ा कम करेंगे, और जो थोड़े टफ यानी कि बड़े multiplications है, टफ तो है नहीं, थोड़े बड़े multiplications है उसको हम लोग ज़्यादा करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले 1 डिजिट का एक ले लेते हैं. एक्सरसाइज 3B चालू करते हैं, है ना. 3B का क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1, let's do number D. Okay, it is written 1378. 1378.
378 इंटू 6, सो 1378 इंटू 6, 8 6 जा 48, 48 का 8 यहाँ पे बिठा दिया है ना। मल्टीप्लीकेशन तो करना आता होगा सबको, स्टिल आई एम टीचिंग यू हाउ टू डू, ओके। तो ये जो डिजिट है, इस डिजिट को हम लोग को सारे नंबर्स के साथ एक एक करके स्टार्टिंग फ्रॉम वंस टू टेंस टू हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऐसे करके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना है और एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना है ना। तो क्या करेंगे, 6 8 6 जा और 6 8 जा 48, 48 का 8 और कैरी अपना कितना है 4, ओके। 6 7 जा और 7 6 जा 42, राइट। 42 प्लस 4 वी गेट 46। तो अगेन हम लोग का क्या आ गया 4 कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस कैरी 4 वी गेट 22, तो 22 का यहाँ पे 2 आ गया। अभी कैरी अपना कितना है 2, ओके। 6 1 जा 6, 6 आया प्लस 2 वी गेट 6 प्लस 2 8, ओके। सो 8268, this is our answer, okay. Then let us move to question number 2, sub number. Again let us do number no, not question number 2. This is the same question only, question number 1H. Let us do question number 1H. अभी 2 डिजिट का नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 4 डिजिट एंड 2 डिजिट, 1306 1306 इंटू 5 9, राइट। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो 2 डिजिट्स का भी कोई इतना चक्कर नहीं है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, जो 1 डिजिट है नीचे जो नंबर हमने लिखा हुआ है उसका जो 1 डिजिट है उस 1 डिजिट को बाकी सारे डिजिट्स जो ऊपर लिखे हुए हैं उनको 1 बाय 1, मतलब ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो यानी कि ये 1 डिजिट जो है इसको मल्टीप्लाई करना है पहले 1 डिजिट के साथ, फिर 10 डिजिट के साथ, फिर 100 डिजिट के साथ, फिर 1000 डिजिट के साथ, ओके। सो अगेन देन दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप, है ना। पर हमारे पास 2 नंबर है नीचे तो दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, 5 ले लेंगे, फिर 5 के साथ ये ऊपर वाला 1 डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट 1000 डिजिट सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। 9 6 जा 54, राइट। सो हियर वी विल बी राइटिंग 4 and carry we have 5, 9 zeros are 0, 0 plus carry 5 we get 5, okay। 9 3s are 27, 27 का यहाँ पे बिठा देंगे 7 और हम लोग का कैरी कितना है 2, 9 1s are 9 plus 2 we get 11। तो 9 के साथ हम लोगों ने ये नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, करके हम लोग को इतना मिला, ठीक है। अभी जो लास्ट डिजिट है, ये जो आंसर हम लोग को मिला है, इस आंसर का 1 डिजिट के नीचे हम लोग पुट कर देंगे एक क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग और नंबर नहीं बिठाएंगे, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करेंगे तब, ठीक है। तो अभी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 6, 5 6 जा 30, 30 का 0 बिठा दिया। अभी अपना कैरी कितना है 3, 5 zeros are 0 plus 3 we get 8, okay। 5 3s are 15, अभी कैरी कुछ है नहीं अपना, ठीक है। 8 निकल गया, अभी ये कुछ कैरी नहीं है। 5 3s are 15, 15 का 5, okay। कैरी 1, 5 1s are 5 plus 1 we get 6, okay। So this is what we got after multiplying 5 with 1306। अभी क्या करना है, जो हम लोग को आंसर मिला है दोनों मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग को क्या करना है, उसको ऐड कर देना है और यहाँ पे लिख देना है, ओके।
सो 4 के नीचे तो क्रॉस है, यानी कि कोई नंबर नहीं है, तो 4 प्लस नथिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 4। 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 करने से हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 5। 7 प्लस 8, 8 प्लस 7 करेंगे तो 15 मिल जाएगा। 15 का 5 इधर और कैरी 1 है, तो कैरी 1 इधर लेकर आ जाएंगे, है ना। 5 प्लस 1 प्लस 1, तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 7। 6 प्लस 1 7। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो 13 यानी कि 1306 इंटू 59 करने से हम लोग को कितना मिलेगा आंसर, 77,554। ओके, सो दिस इज आवर आंसर. So this is our answer, and this is how we need to do multiplication. Now 3-digit multiplication we will do in our next class. What you'll do is do homework. Okay, I'll be giving homework question number exercise 3B. You do homework B, C, F and G. Okay, B, C, F and G, ये चारों homework करना. And I'm really sorry that I wasn't able to check your homework till date. Okay, because I have been suffering from some problems, so I could not check your copies. But from now on, I'll try to check as many copies as possible. So after doing homework, you please send me. I'll be checking your homeworks at least, because class work तो हम लोग कर ही लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो अपना ध्यान से कॉपी में लिखो जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है। और जो होमवर्क है वो मैं कोशिश करूँगी कि सारे होमवर्क्स चेक कर देने के लिए, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से घर में प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, बिकॉज मैथ्स you need to practice more than doing in this classes and all. Okay, so after understanding you should make sure that you do the questions very nicely. Okay, sorry for the distraction. Thank you so much, and everybody do it.